یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. جمعرات 22 جنوری کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. ٹرمپ کا ڈیووس میں پرجوش استقبال، ماضی کے برعکس لہجے میں نمایاں نرمی. The President of the United States, Donald J. Trump. گرین لینڈ پر ٹرمپ کے دباؤ کے آگے نہیں جھکوں گا، برطانوی وزیر اعظم کا اعلان. But I do want to be clear with the House. I will not yield, Britain will not yield on our principles and values about the future of Greenland under threats of tariffs. غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے میں 3 فلسطینی صحافیوں سمیت 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی. What happened is a very big crime committed by the Israeli army by targeting a crew belonging to the Egyptian committee. ایران کے حالیہ مظاہروں میں صرف تہران میں 30 کھرب ریال کا نقصان، ہلاک ہونے والے 3117 افراد میں سے 2427 شہید قرار. پاکستان کی غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ، تجزیہ کار بولی. ٹرمپ جو ہے نا وہ اس وقت غزہ تو ایک سمجھیں بہانہ ہے، وہ UN کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں. جانیے اربوں ڈالر کی تجارت یقینی بنانے والی اہم بحری گزرگاہیں سعودی عرب اور امارات کے درمیان رقابت کا میدان کیسے بنی. یہ بھی جانیے کہ اگر آپ کبھی جلتی ہوئی عمارت میں پھنس جائیں تو کیسے بچ سکتے ہیں. پاکستان میں استعمال شدہ موبائل فونز کی کسٹم ویلیو میں کمی. جانیے اب فون رجسٹر کروانے پر کتنا ٹیکس ہوگا. ہینڈ شیک بھول گئے، لگتا ہے پڑوسیوں کے پاس رکے تھے. پاکستان آسٹریلیا T20 سیریز کا پرومو سوشل میڈیا پر زیر بحث. ہینڈ شیک بھول گئے آپ، لگتا ہے پڑوسیوں کے پاس بھی رکے تھے. پاکستان کے بلائی علاقوں میں ژالہ باری اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان. اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرنے کے لیے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حال میں داخل ہوئے تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ کم از کم آغاز میں شرکا کی جانب سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا گیا اور تالیاں بھی بجائی گئیں. اس کے علاوہ حال میں داخل ہونے کے لیے غیر معمولی بھگدڑ بھی دیکھنے میں آئی، جہاں کئی افراد کو اندر آنے سے روک دیا گیا، حتیٰ کہ بعض سربراہان مملکت بھی داخل نہ ہو سکے. سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت تھے، یہاں تک کہ بعض نہایت معروف شخصیات کو بھی حال میں داخل ہونے یا باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. تقریر کے ابتدائی لمحات میں صدر ٹرمپ پرسکون نظر آئے اور انہوں نے برطانیہ کے لیے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ وہ ترقی کرے اور آگے بڑھے. President of the United States, Donald J. Trump. جس دن کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال تھا کہ امریکی صدر اپنی نئی عالمی معیشت کے قوانین کا اعلان کریں گے، وہ دن در حقیقت زیادہ تر نصیحتوں اور مشوروں پر مشتمل رہا. یہ انداز ان کے سوشل میڈیا بیانات کے نسبتاً سخت اور دھمکی آمیز لہجے سے خاصا مختلف تھا، جن میں وہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ گرین لینڈ امریکہ کا حصہ بنے گا، چاہے اس کے لیے امریکہ کو طاقت کا استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے. ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل ڈونلڈ ٹرمپ کون سے ہیں؟ کیا انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے بعض بیانات کو عالمی سطح پر کس قدر منفی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے؟
गुज़िश्ता रात जब सदर ट्रंप के वज़ीर तिजारत हॉवर्ड लाटनिक ने सामीन से खिताब करते हुए यूरोप की मईशत के बारे में कहा कि आप मुआशी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, इस बयान के बाद हाल से वॉकआउट हुआ और सवाल पैदा हुआ कि क्या सदर ट्रंप की तकरीर में भी ऐसा ही कोई मंजर देखने को मिल सकता है। ताहम सदर ट्रंप की तकरीर से ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी भी मुमकिन रद्द-ए-अमल से बचने की कोशिश कर रहे थे। इब्तिदा में ऐसा महसूस हुआ कि सदर डोनाल्ड ट्रंप सफारती अंदाज इख्तियार किए हुए हैं, शायद उन्होंने अपने खिलाफ होने वाली नुमाया तनकीद सुन ली हो और लहजा नरम रखने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने मगरबी इत्तेहादियों के बारे में दोस्ताना अंदाज में बात की, वही इत्तेहादी जो उनके सोशल मीडिया बयानात से सबसे ज्यादा परेशान दिखाई देते रहे हैं। उन्होंने यहां तक तस्लीम किया कि शायद उन्हें ग्रीनलैंड जैसे मुतनाज़ा मामले पर बात नहीं करनी चाहिए, जिस पर वो माजी में बारहा कब्जा करने और ताकत का इस्तेमाल करने का अज़म जाहिर कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो खुद को रोक ना सके और तकरीर ने आहिस्ता आहिस्ता एक मोड़ लिया और लहजे में सख्ती का अंसर दिखाई देने लगा। सबसे पहले उन्होंने माजी में ग्रीनलैंड की मदद में अमेरिका के किरदार का जिक्र किया और डेनमार्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की बात की। ताहम इसके बाद उन्होंने यूरोप की सबसे बड़ी मईशत को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर अमेरिका ना होता तो हाल में मौजूद तमाम लोग जर्मन जबान बोल रहे होते। इसी के बाद असल ऐलान सामने आया जिसका शायद सबको ही इंतजार था। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड के हुसूल के लिए फौरी मुज़ाकरात चाहता है। उनके बकौल ये एक तयशुदा मुआहदे के जरिए होगा, इसमें ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ताहम अमेरिका को मुकम्मल मलकियत दरकार है। उन्होंने कहा कि हम उस जमीन को चाहते हैं ताकि वहां अब तक का सबसे अजीम गोल्डन डोम तामीर किया जा सके। सदर ट्रंप ने कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी को एक दिन पहले दिए गए बयान पर खबरदार भी किया, ताहम साथ ही ये जोर दिया कि ग्रीनलैंड को कनाडा के दिफा के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा मांग रहा हूं, ये कोई बड़ा मुतालबा नहीं है। All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. We were a powerful force then, but we are a much more powerful force now. After I rebuilt the military in my first term and continue to do so today, we have a budget of $1.5 trillion. We're bringing back battleships. The battleship is 100 times more powerful than the great battleships you saw in World War II, those great, big, gorgeous ships, the Missouri, the Iowa, the Alabama. Because I thought maybe we could take them out of mothballs. They said, no, sir, these ships are 100, think of that, 100 times more powerful than those big, magnificent pieces of art that you saw so many times ago, that you still see on television. You say, wow, what a force. 100 times, each ship 100 times more powerful. अमेरिकी सदर की जानिब से नरम लहजे में बात करने पर हाल में तालियां भी बजाई गईं। ताहम जैसे ही उन्होंने मुबैना धांधली ज़दा इंतखाबात और दीगर आलमी रहनुमाओं की डेवोस तकारीर पर अपनी नाराजगी का जिक्र किया तो कई शुरका हैरत और बेयकीनी के आलम में बैठे नजर आए। अगरचे सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमला ना करने का वादा किया, लेकिन यूरोप को ये इलाका अमेरिका के हवाले करने पर आमादा करने की उनकी कोशिशों ने बहुत सौ को हैरान कर दिया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने सदर की तकरीर को टाको ट्यूसडे कहा, जिसका मतलब उन्होंने ये बताया कि ट्रंप हमेशा पीछे हट जाता है। ये एक तंजिया जुमला था जिससे सदर का मजाक उड़ाया गया। उनका कहना था कि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैख्वा और कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी की जानिब से सख्त रद्द अमल के बाद सदर ट्रंप ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया और उसमें नरमी का अंसर दिखाई दिया। रिपब्लिकन पार्टी के एक अहम सेनेटर थॉमस टिलस ने कहा कि ग्रीनलैंड के हसूल की कोशिश हत्ता के मुज़ाकरात के जरिए इलाक भी कांग्रेस की हिमायत हासिल नहीं कर सकेगा। यूं अगरचे सदर ट्रंप ने कशीदगी कम करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इत्तेहादी ममालिक को तनकीद का निशाना बनाना जारी रखा, जिनमें बाज आलमी रहनुमाओं पर जाती हमले भी शामिल थे। अगरचे उन्होंने ग्रीनलैंड पर हमला ना करने का वादा किया, ताहम साथ ही ये भी कहा कि ये इलाका नए अमेरिका का हिस्सा बनेगा और दुनिया को इस पर उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तकरीर तो बिलाखिर इख्तिताम को पहुंच गई, लेकिन इस पर बहसो मुबासा तवील अरसे तक जारी रहने का इम्कान है।
बरतानिया के वजीर आजम सर कियर स्टारमर ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। बरतानवी पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ ग्रीनलैंड के अवाम और डेनमार्क का हक है और बरतानिया अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। The future of Greenland is for the people of Greenland and the Kingdom of Denmark alone. But I do want to be clear with the House. I will not yield, Britain will not yield on our principles and values about the future of Greenland under threats of tariffs. सर कियर स्टारमर ने यह बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चागोस जज़ायर के मुआहदे पर तनकीद के बाद दिया है, जिसे ट्रंप ने बेवकूफ़ाना फैसला करार दिया था। स्टारमर के मुताबिक सदर ट्रंप इस मामले को ग्रीनलैंड पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताहम वो ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरी जानब डेनमार्क के वजीर खारजा ने ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड के उसूल के लिए ताकत का इस्तेमाल से इनकार को खुश आइंद करार दिया, लेकिन कहा कि अमरीकी सदर के अज़ाइम बदस्तूर तशवीश का बाइस हैं। उधर ट्रंप ने एक बार फिर यूरोपीय ममालिक को खबरदार किया है कि ग्रीनलैंड के मामले पर हाँ कहने पर शुक्रगुजार होगा और ना कहने की सूरत में उन्हें याद रखा जाएगा, जिससे यूरोप और अमरीका के दरमियान कशीदगी मजीद नुमाया हो गई है। इमदादी कारकुनों के मुताबिक गजा में इसराइली हमले के नतीजे में 3 फलस्तीनी साफ़ी हलाक हो गए हैं। गजा की हमास के ज़ेर इंतज़ाम सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि अल ज़हरा के इलाके में साफ़ियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। हलाक होने वाले साफ़ियों की शिनाख्त मोहम्मद सलाह कश्ता, अनस गनीम और अब्दुल रऊफ शाद के नाम से की गई है। बताया जाता है कि वो एक मिस्री इमदादी तंजीम के लिए काम कर रहे थे। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसने हमास से मुंसलिक ड्रोन चलाने वाले मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को निशाना बनाया जो उनके फौजियों के लिए खतरा बन रहे थे। फौज ने मजीद कहा कि इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं। बुध के रोज गजा भर में इसराइली तोपखाने और फायरिंग के नतीजे में मजीद 8 अफराद हलाक हुए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इन हलाकतों की तस्दीक हमास के ज़ेर इंतजाम वजारत सेहत की जानिब से की गई है। तिब्बी अमले के मुताबिक वस्ती गजा में इसराइली टैंक की फायरिंग से 3 अफराद, जिनमें एक 10 साला लड़का भी शामिल है, हलाक हुए हैं। इसी तरह जनूबी इलाके खान यूनस में इसराइली फायरिंग से एक 13 साला लड़का और एक खातून हलाक हुए। इसराइली फौज ने बुध की सुबह बयान में कहा कि उसके फौजियों ने एक दहशतगर्द को हलाक किया जो येलो लाइन अबूर करके उनके करीब आने की कोशिश में थे। येलो लाइन उस इलाके की हदबंदी करती है जो जंगबंदी मुआहदे के तहत अब भी इसराइली कंट्रोल में है। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वजारत सेहत के मुताबिक 10 अक्टूबर को इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के आगाज़ के बाद से अब तक गजा में कम अज़ कम 466 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानब इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसी मुद्दत के दौरान फ़लस्तीनी मुसल्लह गिरोहों के हमलों में उसके 3 फ़ौजी भी हलाक हुए हैं। ईरान के नीम सरकारी खबर रसा इदारे तस्नीम के मुताबिक हालिया मुल्क गिर मुजाहिरों और बदअमनी के नतीजे में सिर्फ तेहरान में 30 खरब रियाल का माली नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने 459 सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। 8 सूबों में 702 बैंक ब्रांचेस और सैकड़ों तिजारती मराकज को नुकसान पहुंचा, जबकि मसाजिद, अवामी ट्रांसपोर्ट और पुलिस गाड़ियां भी मुतासर हुई। ईरान के पुलिस चीफ ने कहा कि तमाम सूबों में गिरफ्तारियां जारी हैं और मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयां आखिरी फर्द की गिरफ्तारी तक जारी रहेंगी। वजारत इंटेलिजेंस के मुताबिक कई शहरों में मुबैना फसादी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और असला भी बरामद हुआ है। दूसरी जानब शोहदा और साबिक फौजियों की फाउंडेशन ने ऐलान किया है कि बदअमनी के दौरान हलाक होने वाले 3117 अफराद में से 2427 को, जिनमें आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं, शहीद करार दिया गया है। ये मुजाहरे 28 दिसंबर को मुआशी बहरान और करेंसी की कदर में शदीद कमी के बाद शुरू हुए थे, जिनके जवाब में हुकूमत ने सख्त क्रैकडाउन और मुल्क भर में इंटरनेट बंद कर दिया था। इंटरनेट की निगरानी करने वाले आलमी इदारे नेट ब्लॉक्स की जानिब से ईरान में इंटरनेट की बंदिश के हवाले से जारी होने वाली एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान में इंटरनेट की बंदिश आज दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। इदारे की जानिब से एक चार्ट जारी करते हुए कहा गया कि 2 हफ्ते कबल इसी दिन ईरान का राब्ता दुनिया से हुकूमती अहकामात के बाद मुनक़ता कर दिया गया था। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर गजा में देरपा अमन के लिए कायम किए जाने वाले बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला कर लिया है। वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान इस फोरम के जरिए मुस्तकिल जंगबंदी, इंसानी इमदाद में इजाफे और गजा की तामीर नौ के लिए तामीरी किरदार अदा करेगा। हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान का किरदार बुनियादी तौर पर सिफारती होगा
اور وہ کسی ایسی بین الاقوامی استحکام فورس کا حصہ نہیں بنے گا جس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا ہو۔ ماہرین کے مطابق یہ شمولیت پاکستان کی سفارتی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، تاہم اس حوالے سے علاقائی مشاورت اور محتاط حکمت عملی اپنائی جائے گی تاکہ پاکستان دو ریاستی حل سے وابستگی برقرار رکھ سکے۔ اس بارے میں ہم مزید جانتے ہیں عسکری امور پر دسترس رکھنے والی محققہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے۔ ڈاکٹر صاحبہ، بورڈ آف پیس بن گیا، پاکستان نے ممبرشپ بھی قبول کر لی، اسرائیل بھی مان گیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صدر ٹرمپ اس بورڈ سے نیٹو کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں یا پھر یو این او کو؟ ایک تو پاکستان نے جو ٹھانی ہے وہ یہ کہ جی علاقے کی چوکی داری تاکہ اس سے پیسے آئیں۔ ہم، اب اس علاقے کی چوکی داری کا ایک جو کڑی ہے وہ امریکہ ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات، ہم، کیونکہ یہ جو سارے ملک ہیں، یو اے ای، سعودی عربیہ، بحرین، قطر وغیرہ، یہ سب الائز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ایک اسٹریٹجک بورڈ ہے اس کا حصہ ہے، صحیح۔ اور پاکستان چاہ رہا ہے کہ اس میں اس کا ایک رول ہو۔ اچھا، اسی سلسلے میں مڈل ایسٹ میں بھی گئے، پاکستان نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اسرائیل نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اسرائیل پہلے نہیں مان رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیتن یاہو نے پہلے کہا کہ جی یہ جو غازہ پیس بورڈ ہے یہ بالکل اسرائیلی انٹرسٹ کے خلاف ہے، تو وہ مان گئے۔ ظاہر ہے انہوں نے بھی اجتناب کیا ٹو ٹیک آن ٹرمپ۔ اچھا، میں پڑھ رہی تھی جی منسٹری آف فارن افیئرز پاکستان کی جو اسٹیٹمنٹ نکلی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم اب امید رکھتے ہیں کہ پیلسٹینین اسٹیٹ اور دیکھیں پیلسٹینین اسٹیٹ وغیرہ تو نہیں ہونے والی، اور نہ ہی ٹرمپ صاحب کا کوئی ارادہ ہے۔ ان کا جو براڈر ارادہ ہے وہ اپنے ٹریڈ پرسپیکٹو سے وہ جو ایک فرینچ ریویرا کی طرح غزہ کو کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ٹریڈ انٹرسٹ جو ہیں کہ امریکہ کے ٹریڈ انٹرسٹ کو چھوڑ دیں، لیکن ٹرمپ صاحب کے جو ٹریڈ انٹرسٹ ہے اس میں وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گرین لینڈ کو بھی اسی لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، غزہ کو بھی اس لیے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ہم، ایک تو یہ بات ہے، ہم، دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ اس وقت غزہ تو ایک سمجھیں بہانہ ہے، وہ یو این کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں۔ مطلب کہ ہم دنیا میں ایک ایسے فیز سے گزر رہے ہیں جس میں ملٹا لیٹرلزم جو ہے وہ امریکہ ختم کر رہا ہے۔ ٹرمپ صاحب جو آئے ہیں وہ ملٹا لیٹرلزم پہ تو کوئی یقین رکھتے نہیں ہیں۔ ایک تو مسئلہ ان کا یہ ہے، ممکن نیٹو کا حال دیکھ لیں، یو این کا حال دیکھ لیں، اور وہ یو این کو ریپلیس کر کے ایک نئی باڈی جو غزہ پیس بورڈ ہے، بیسکلی ایک نئی باڈی ہے جس میں وہ ماسٹر آف سیریمنیز ہوں گے بجائے یونائٹڈ نیشنز کے۔ اب ظاہر ہے اس میں پاکستان گھس رہا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے شرط لگائی ہے کہ جی ہر جو آئے گا وہ $1 بلین دے گا اگر پرماننٹ ممبر بننا ہے۔ اب پاکستان کی تو اوقات نہیں ہے $1 بلین کی، ہم تو مانگتے پھرتے ہیں، ہم کہاں سے دیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اب اس میں پیس کیپنگ کیا ہوگا، جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ غازہ پیس بورڈ جو ہے وہ اوورسی کرے گا پیلسٹینین اتھارٹی کو، جو کہ پھر اگر اس نے حماس کو یا اس کی مجال ہے، اوقات ہے، تو وہ ڈی ویپنائز وہ کرائیں گے۔ لیکن غازہ کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہونے والا ہے، ناٹ ریئلی ان فیور آف پیلسٹینین۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ شائدہ ہونے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کیونکہ انکار بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اوقات نہیں ہے کہ پاکستان ٹرمپ صاحب کو کہے کہ جی ہم تو نہیں آ رہے۔ آہستہ آہستہ باقی اور ملک بھی آ جائیں گے۔ ابھی میکرون نے بھی کہا ہے کہ جی ہم نہیں آ رہے غازہ پیس بورڈ میں۔ انڈیا نے بھی جواب نہیں دیا غازہ پیس بورڈ میں، ان کو بھی انویٹیشن ہے۔ تو دیکھیں کون آتا ہے اور یہ کس طرح، اور بات یہ ہے کہ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ رن کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ کس طرح کریں گے، کس سے کیا منوائیں گے، مطلب کہ ایک اور کیوس کی سیریز ہے جس کا
जिसकी शुरुआत हो रही है। सही डॉक्टर आयशा सदीका, आपका बेहद शुक्रिया। सामीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सियासी व स्ट्रेटेजिक कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह खित्ते की अहम बहरी गुजरगाहों और बंदरगाहों पर असर व रसूख की जंग बताई जा रही है। सऊदी सरकारी चैनल की जानिब से अमारात पर मीडिया मुहिम्मात के इल्जामात के बाद ये बहस मजीद तेज हो गई है कि आया अरबों डॉलर की आलमी तिजारत को यकीनी बनाने वाले समुद्री रास्ते दोनों खलीजी ममालिक की गैर एलानिया रकाबत का मरकज बन चुके हैं। तजियाकारों के मुताबिक यमन, बाबुल मंदब, बहराए अहमर और सोमाली लैंड जैसे मुकामात इस कशिश में कलीदी हैसियत रखते हैं। अमारात ने बंदरगाहों में सरमायाकारी और फौजी मौजूदगी के जरिए समुद्री सलामती में किरदार बढ़ा दिया है, जबकि सऊदी अरब इसे अपने इलाकाई मफादात और इसराइल के बढ़ते असर रसूख के तनाजर में देख रहा है। दूसरी जानब अमारात का मौक़िफ़ है कि उसकी हिकमत अमली तसादम नहीं बल्कि तिजारत, इस्तेकाम और आलमी जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब का सोमालिया और मिस्र के साथ नया फौजी ताउन और इमारात की बहराए अहमर में सरगर्मियाँ खित्ते में ताकत के तवाज़न को मजीद हसास बना रही हैं। यूं ये बहरी रास्ते न सिर्फ तिजारत बल्कि खलीजी सियासत और मुस्तकबिल की इलाकाई सफ़बंदी का भी अहम मैदान बनते जा रहे हैं। सामीन, क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप कभी जलती हुई इमारत में फंस जाएं तो कैसे बच सकते हैं? देखिए हमारे साथी रियाज सुहेल और मोहम्मद नबील की ये रिपोर्ट और जानिए कि आग फैलती कैसे है, पाकिस्तान में आग से बचाने के क्या कवानीन मौजूद हैं और आप खुद को ऐसी सूरत हाल में कैसे बचा सकते हैं। पाकिस्तान में हर साल आग लगने के वाकयात में कीमती जानें ज़ाया और करोड़ों रुपयों का माली नुकसान होता है। माहिरीन के मुताबिक मसला सिर्फ आग नहीं बल्कि वो हालात हैं जो आग को चंद ही मिनटों में एक नाकाबिले कंट्रोल हादसा बना देते हैं। आग इतनी खतरनाक क्यों होती है? आग की सबसे खतरनाक खुसूसियत उसकी तेजी है। चंद मिनटों में इमारत धुएं से भर जाती है और दर्जा हरारत 100 सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। आग ऑक्सीजन को तेजी से खत्म करती है, जहरीले केमिकल्स और जानलेवा गैसें पैदा होती हैं। अगर इंसान ऐसे माहौल में सांस ले तो फेफड़े शदीद मुतासिर हो सकते हैं, दम घुटने लगता है, कमजोरी, कन्फ्यूजन और बेहोशी हो सकती है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि ज़्यादातर अमवात जलने से नहीं बल्कि धुआं सांस की नली में जाने से होती हैं। सवाल यह है कि मल्टी स्टोरी इमारतें ज़्यादा खतरनाक क्यों बन जाती हैं? बुलंद इमारतों में आग की सूरत में खतरा कई गुना बढ़ जाता है, निकलने के रास्ते महदूद हो जाते हैं। ऐसे में लिफ्ट इस्तेमाल नहीं की जा सकती, सीढ़ियाँ अक्सर वाहिद रास्ता होती हैं और अगर सीढ़ियाँ धुएं से भर जाएं तो लोग फंस जाते हैं। धुआं और जहरीली गैसें तेज़ी से ऊपर की मंजिलों में फैलती हैं, हद्दे निगाह कम हो जाती है और लोग रास्ता भूल सकते हैं। इस सूरत-ए-हाल में फायर इंजन ऊंची मंजिलों तक बाहर से नहीं पहुंच सकते, लिहाजा अंदरूनी फायर फाइटिंग सिस्टम पर इन्हिसार किया जाता है। अगर यह सिस्टम मौजूद ना हो या ख़राब हो तो आग बेकाबू हो जाती है। इसीलिए मल्टी स्टोरी इमारतों में फायर ड्रिल्स का एहतमाम किया जाता है ताकि लोगों को उन लम्हात में मालूम हो कि उन्हें क्या करना है। जलती इमारत में फंस जाना इंसान के लिए सबसे खौफनाक तजुर्बात में से एक हो सकता है, लेकिन दुरुस्त इक़दाम जान बचा सकते हैं। माहिरीन का मशवरा है कि इस सूरत-ए-हाल में पुरसुकून रहें और अंदाज़ा लगाएं कि आग कहाँ और किस तरफ है, धुआं कितना है, सांस लेना मुमकिन है या नहीं। फौरी मदद के लिए कॉल करें, लोकेशन शेयरिंग ऑन रखें, बोल ना सकें तो कॉल लाइन खुली छोड़ें। अगर एक जगह से दूसरी जानिब जा रहे हैं तो दरवाज़ा खोलने से पहले चेक करें, हाथ की पिछले जानिब से दरवाजे या हैंडल को छुएं। अगर गर्म हो तो दरवाज़ा न खोलें, अगर ठंडा हो तो आस्ते आस्ते खोलें। अगर बाहर निकलना मुमकिन ना हो तो खुद को एक कमरे में बंद कर लें। दरवाजे के नीचे गीला कपड़ा रखें, दरारें बंद करें, फर्श के करीब रहें क्योंकि धुआं ऊपर जाता है। अगर करीब खिड़की मौजूद है तो उसे खोलकर ताज़ा हवा लें, मदद के लिए बाहर इशारा दें। आग के दौरान लिफ्ट इस्तेमाल न करें, धुआं से भरे कमरे में न भागें, दोबारा जलती हुई इमारत में दाखिल न हों। पाकिस्तान में फायर सेफ्टी के लिए बिल्डिंग कोड मौजूद है,
ये कानून सरकारी और निजी दोनों इमारतों, रिहायशी, कमर्शियल फैक्ट्री, स्कूल, अस्पतालों सब पर लागू होता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक ग्राउंड प्लस 3 मंजिल या 43 फीट से ऊंची इमारत में स्टैंड पाइप सिस्टम लाजमी है, जो 2 इंच से लेकर 4 इंच तक हो सकता है, जिसके लिए हर मंजिल पर कनेक्शन मौजूद हों और पानी मुख्तस हो। इसी तरह बड़ी इमारतों में स्प्रिंकल सिस्टम, फायर अलार्म, इमरजेंसी रास्ते, इमरजेंसी लाइट्स और आग बुझाने के दस्ती आलात लाजमी करार दिए गए हैं। कवानीन मौजूद हैं, तरीक़ेकार वाज़ेह है, लेकिन जब रास्ते बंद हों, अलार्म न बजें, फायर फाइटिंग सिस्टम काम न करें, तो चंद मिनटों की आग दर्जनों जाने ले जा सकती है, जिसकी मिसाल गुल प्लाजा भी हो सकती है। पाकिस्तान में इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन सार्फिन के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां दरामद शुदा पुराने मोबाइल फ़ोन्स की कस्टम वैल्यू में नुमाया कमी कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक ये कमी टैक्स की शरह में नहीं बल्कि फ़ोन्स की कस्टम वैल्यू में की गई है, जिसके नतीजे में अब PTA रजिस्ट्रेशन पर अदा किया जाने वाला मजमूई टैक्स कम हो गया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन कराची के नोटिफिकेशन के तहत एप्पल, सैमसंग, गूगल पिक्सल और वन प्लस समेत 62 मॉडल की नई कस्टम वैल्यू मुकर्रर की गई है। हुकाम का कहना है कि इससे कबल मुकर्रर की गई वैल्यूज मार्केट रेट से कहीं ज्यादा थी, जिन्हें अब हकीकत के करीब लाया गया है। PTI के कवायद के मुताबिक मोबाइल फोन की रजिस्ट्रेशन पर टैक्स का इन्हासार कस्टम वैल्यू पर होता है, इसीलिए वैल्यू कम होने से रजिस्ट्रेशन फीस भी कम हो गई है। PTI के मुताबिक नई कस्टम वैल्यू के तहत iPhone 15 Pro Max की मालियत $460 मुकर्रर की गई है, जिस पर पासपोर्ट के जरिए रजिस्ट्रेशन की सूरत में 39,000 रुपए, जबकि शनाख्ती कार्ड पर रजिस्ट्रेशन के लिए 45,313 रुपए टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की नई कस्टम वैल्यू $555 मुकर्रर की गई है, जिस पर पासपोर्ट के जरिए रजिस्ट्रेशन पर 24,336 और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्ट्रेशन करने पर 26,596 रुपए टैक्स लागू होगा। PTA के जारी करदा टैक्स स्लेब के मुताबिक $30 तक मालियत के फोन्स पर पासपोर्ट के जरिए रजिस्ट्रेशन पर 430 रुपए, जबकि शनाख्ती कार्ड पर 550 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। $30 से $100 मालियत के फोन्स पर पासपोर्ट पर 3,200 और शनाख्ती कार्ड पर 4,323 रुपए टैक्स आयद होगा। $100 से $200 मालियत के फोन्स पर पासपोर्ट पर 9,580 जबकि शनाख्ती कार्ड पर 11,561 रुपए टैक्स मुकर्रर किया गया है। PTA के मुताबिक $200 से ज्यादा मालियत के फोन्स पर फिक्स टैक्स के साथ 17% सेल्स टैक्स भी लागू होगा। हुकाम का कहना है कि नई कस्टम वैल्यू का इतलाक उन फोन्स पर होगा जिनका IMEI नंबर अब तक PTA सिस्टम में दर्ज नहीं किया गया, जिससे सार्फिन को रजिस्ट्रेशन में अमली रिलीफ मिलने की तवक्को है। मोबाइल डीलर्स के मुताबिक जिन फोन्स का IMEI नंबर अब तक PTA सिस्टम में दर्ज नहीं हुआ, उन पर नई कम कस्टम वैल्यू लागू होगी, चाहे वो फोन पहले ही मुल्क में आ चुका हो। सार्फिन के लिए ये फैसला एक अमली रिलीफ करार दिया जा रहा है, जिससे रजिस्ट्रेशन का रुझान बढ़ने की तवक्को है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB की जानिब से जारी किया गया प्रोमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर खासी तवज्जो हासिल कर रहा है, जहां इसमें शामिल हैंडशेक से मुतल्लक तंजिया जुमला एक बार फिर बहस का सबब बन गया है। प्रोमो में एक ऑस्ट्रेलवी शहरी को पाकिस्तान आते दिखाया गया है, जहां उसकी रिवायती मेहमान नवाजी की जाती है। लाहौर की फूड स्ट्रीट में खाने, बिल की अदायगी और टैक्सी ड्राइवर के लिए किराया ना लेने जैसे मनाजर के जरिए पाकिस्तानी सकाफत को उजागर किया गया है। ताहम वीडियो के इख्तिताम पर टैक्सी ड्राइवर का ये जुमला कि हैंडशेक भूल गए, लगता है पड़ोसियों के पास रुके थे, सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो का मरकज बन गया है। हैंडशेक भूल गए आप, लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे। हैंडशेक। ये जुमला गुज़िश्ता बर्स एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पेश आने वाले मुसाफा तनाज़े की तरफ इशारा समझा जा रहा है। इसी वजह से कुछ सार्फिन ने प्रोमो को दिलचस्प और जानदार करार दिया, जबकि बाज़ ने इसे गैर ज़रूरी तंज और वकार के खिलाफ करार दिया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज 29 जनवरी से 1 फरवरी तक लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेली जाएगी, जिसके फौरन बाद 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप का आगाज होगा। दूसरी जानब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के इंडिया में शेड्यूल मैचेस कहीं और मुंतकिल करने से माजरत कर ली है।
बुध को एक बयान में आईसीसी का कहना था कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ तामीरी बातचीत में मसरूफ है, जिसका मकसद टूर्नामेंट में बांग्लादेश की शमूलियत को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में 22 और 23 जनवरी के दौरान तेज बारिशों, यालाबारी और पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी का इम्कान है। महकमे के मुताबिक बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है, जबकि पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग और मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी से सड़कें बंद हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में अक्सर मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि बलाई इलाकों में शाम या रात के वक्त शदीद बर्फबारी हो सकती है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाज़ाबिता ऐलान करते हुए कहा है कि हर कोई इस बोर्ड का हिस्सा बनना चाहता है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि गजा बोर्ड ऑफ पीस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। सदर ट्रंप की जानिब से बोर्ड के बाज़ाबिता इजरा के बाद रुकन ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदों ने इस मुआहदे पर फर्दन साइन किए। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी मुआहदे पर दस्तखत किए और इस दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में मौजूद थे। सदर ट्रंप का कहना था कि बोर्ड में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के कई ज़हीन रहनुमा शरीक हैं और वो उम्मीद करते हैं कि वो मिलकर गजा में अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि वो गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाले हर मुल्क के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी सदर का ये भी कहना था कि इस बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर काम करना उनके लिए एहसास की बात है और ये क़याम अमन की कोशिशों के लिए बनने वाला तारीख का सबसे शानदार बोर्ड होगा। उनका कहना था कि ये बोर्ड गुज़िश्ता बरस के इख्तिताम पर सलामती कौंसिल की मंजूर करारदाद की रोशनी में बनाया जा रहा है। पहले मरहले में हमने जंग बंदी को यकीनी बनाया, जिसकी वजह से हजारों जानों को बचाया गया। सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने दूसरी मुद्दत के लिए इख्तिदार में आने के बाद 8 जंगें रुकवाई हैं। सदर ट्रंप का यह भी कहना था कि उन्हें यकीन है कि जल्द एक और जंग का तस्फिया होने वाला है। यूक्रेन की जंग के बारे में उनका कहना था कि यूक्रेन जंग रुकवाने का मामला वो बहुत आसान समझते थे, लेकिन ये सबसे मुश्किल साबित हुआ है। ट्रंप ने तकरीब में आने वाले बरतानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर का भी शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर का कहना था कि गजा में जंग अब मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाली है और अब हमास को भी गैर मुसल्लह होना होगा। अफगानिस्तान में शदीद बर्फबारी की वजह से काबुल को मुख्तलिफ सूबों से मिलाने वाली कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। काबुल और मुख्तलिफ सूबों में 2 रोज से जारी शदीद बर्फबारी की वजह से काबुल और मुल्हिका इजला में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। तालिबान हुकूमत की वजारत बराए पब्लिक वर्क्स ने BBC को बताया कि बर्फबारी की वजह से सालिंग हुई वे भी बंद हो गई है। ये हाईवे अफगानिस्तान का एक अहम पहाड़ी रास्ता है जो शुमाली और जनूबी अफगानिस्तान को आपस में मिलाती है।